गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरे चैनल ईजीएस्ट मैक्स में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में क्लास सेवन्थ का चैप्टर सेकंड पढ़ा था। आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर थर्ड पढ़ने वाले हैं। तो क्लास सेवन्थ का चैप्टर थर्ड है आपके पास डाटा हैंडलिंग। डाटा हैंडलिंग क्या होता है, देखिए शुरू करते हैं। इन योर प्रीवियस क्लासेस यू हैव डेल्ट विद various types of data. You have learned to collect data, tabulate and put it in the form of bar graphs. The collection, recording and presentation to data help us organize our experiences and draw inferences from them. In this chapter we will take one more step towards learning how to do this. You will come across some more kinds of data and graphs. You have seen several kinds of data through newspaper, magazines, televisions and other sources. You also know that all data give us some sort of information. Let us look at some common forms of data that you come across. 3 टेबल दी गई हैं आपको। फुटबॉल वर्ल्ड कप, टेम्परेचर ऑफ सिटीज़ ऑन 20 जून 2006 और दी गई है डाटा शोइंग वीकली एब्सेंस इन अ क्लास। ठीक है, फर्स्ट जो आपके पास टेबल दी हुई है वो इसमें सिटी है, उनका मैक्सिमम टेम्परेचर है और मिनिमम टेम्परेचर है। उसके बाद जो थर्ड टेबल है उसमें आपको एक वीक में हर पर डे एब्सेंट रहने वाले स्टूडेंट्स की संख्या है। तो मंडे को 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट हैं, ट्यूसडे को 1 चाइल्ड एब्सेंट है, वेडनेसडे को कोई भी एब्सेंट नहीं है, थर्सडे को 5 चाइल्ड एब्सेंट है, फ्राइडे को 2 चाइल्ड एब्सेंट है और सैटरडे को 4 चाइल्ड एब्सेंट है। और जो ये मार्क है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 चाइल्ड को। ठीक है, आगे देखते हैं हम। What do these collections of data tell you? For examples, you can say that the highest maximum temperature was in Jammu on 20 June 2006, or we can say that on Wednesday no child was absent. Can we organize and present these data in a different way so that their analysis and interpretations become better? We shall address such questions in this chapter. Next point है आपका collecting data. What is collecting data? The data about the temperature of cities can tell us many things, but it cannot tell us the city which held the highest maximum temperature during the year. To find that, we need to collect data regarding the highest maximum temperature reached in each of these cities during the year. In that case, the temperature chart of one particular date of the year as given in table 3.1 will not be sufficient. This shows that a given collection of data may not give us a specific information related to that data. For this, we need to collect data keeping in mind that specific information in the above case, the specific information needed by us was about the highest maximum temperature of the cities during the year, which we could not get from table 3.1. Thus, before collecting data, we need to know what we would use it for. Given below are a few situations you want to study. Performance of your class in mathematics, performance of India in football or in cricket, female literacy rate in a given area, or number of children below the age of 5 in the families around you. What kind of data would you need in the above situations? Unless and until you collect appropriate data, you cannot know the desired information. What is the appropriate data for each? Discuss with your friends and identify the data you would need for each. Some of these data is easy to collect and some difficult. Organization of data. When we collect data, we have to record and organize it. Why do we need to do that? Consider the following example. एक एग्जाम्पल हम इसको समझने के लिए लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। Mrs. Neelam, class teacher, wanted to find how children had performed in English. Mrs. नीलम जो क्लास टीचर है वो क्या चाहती हैं कि वो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस को देखें इंग्लिश के अंदर। शी राइट्स डाउन द मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स इन द फॉलोइंग वे। उन्होंने क्या किया, जब स्टूडेंट ने मार्क्स गेट किए थे उनको इस वे में लिख लिया। क्या लिखा, 23, 35, 48, 30, 25, 46, 13, 27, 32, 38।
In this form, the data was not easy to understand. She also did not know whether her impressions of the student matched their performance. Neelam's colleague helped her organize the data in the following way. Table in modified. Well, it can be modified. Permission. नीलम की जो कलीग थी, नीलम्स कलीग हेल्प्ड हर ऑर्गेनाइज द डाटा इन द फॉलोइंग वे. एक टेबल बनाई उन्होंने. क्या किया उन्होंने? रोल नंबर लिखे, नाम लिखे और मार्क्स आउट ऑफ 50 लिखे. ठीक है. In this form, Neelam was able to know which student has got how many marks, but she want more. Deepika suggested another way to organize this data. फिर इसी डाटा को दीपिका ने किसी और वे में ऑर्गेनाइज़ किया. कैसे ऑर्गेनाइज़ किया उसने? ज़्यादा से कम के मार्क्स में कैसे किया? देखिए, रोल नंबर लिखा, नेम लिखे और मार्क्स आउट ऑफ 50. पहले जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे उसके, फिर कम 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 करते हुए लास्ट में जिसके सबसे कम मार्क्स थे वो. Now Neelam was able to see who had done the best and who needed help. Many kinds of data we come across are put in the tabular form. Our school rolls, progress reports, index in the notebooks, temperatures record and many other are all in tabular form. Can you think of a few more data that you come across in tabular form? When we put data in a proper table, it becomes easy to understand and interrupt. ये आपको कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं, आपको ज़रूर करनी चाहिए. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़. यू माइट बी aware of the term average and would have come across statement involving the term average in your day-to-day life. Isha spends on an average of about 5 hours daily for her study. The average temperature at the time of this year is about 40 degrees Celsius. The average age of pupils in my class is 12 years. The average attendance of students in a school during its final examination was 98%. Many more such statements could be there. Think about the statement given above. Do you think that the child in the first statement studies exactly for 5 hours daily, or it's the temperature of the given place during the particular time always 40 degree, or is the age of each pupil in that class 12 years? Obviously not. Then what do these statements tell you? By average we understand that Isha usually studies for 5 hours. On some days you may study for less numbers of hours and on the other days शी में स्टडी लॉन्गर. देखिए क्या कह रहा है कि ईशा ने यूजली, उसने कहा एवरेज का मतलब लगभग वो 5 घंटे रोज़ पढ़ती है. औसत, वो एवरेज का मतलब है औसत वो 5 घंटे रोज़ पढ़ती है. ज़रूरी नहीं कि वो रोज़ 5 घंटे ही पढ़ रही है. एवरेज वैल्यू बता रखी है. कभी वो 5 से ज़्यादा भी पढ़ती है और कभी वो 5 से कम भी पढ़ती है. ठीक है. सिमिलरली द एवरेज टेम्परेचर ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस मीन्स दैट वेरी ऑफ्टन द टेम्परेचर एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इज़ अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस. समटाइम्स इट मे बी लेस देन 40 डिग्री सेल्सियस एंड एट अदर टाइम्स it may be more than 40 degree Celsius. Thus, we realize that average is a number that represents or shows the central tendency of a group of observations or data. Since average lies between the highest and the lowest value of the given data, so we say average is a measure of the central tendency of a group of data. Different form of data need different form of representative or central value to describe it. One of these representative value is the arithmetic mean. You will learn about the other representative values in the later parts of the chapter.
नेक्स्ट टॉपिक देखिए, अर्थमेटिक मीन। द मोस्ट कॉमन रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ अ ग्रुप ऑफ डाटा इज द अर्थमेटिक मीन or the mean. The understand this in a better way, let us look at the following example. Two vessels contains 20 liters and 60 liters of milk respectively. What is the amount that each vessel would have if both share the milk equally? When we ask this question, we are seeking the arithmetic mean. देखिए क्या कह रहा है कि दो बर्तनों में, एक में 20 लीटर और एक में 60 लीटर मिल्क रखा हुआ है, और क्या करें कि दोनों में इक्वल मिल्क आ जाए, ऐसी क्या संभावना, क्या माध्य है इसका। तो क्या निकालेंगे, इन द अबव केस द एवरेज और द अर्थमेटिक मीन वुड बी टोटल क्वांटिटी ऑफ मिल्क एंड नंबर ऑफ व्हीसल्स। टोटल क्वांटिटी कितनी है इसकी, 20 + 60 यानी कि 80/2 is equals to 40 liters. Thus each vessel would have 40 liters of milk. The average arithmetic mean, AM, or simply mean, is defined as follow, means sum of all observations divided by number of observations. ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है और इसको आपको हमेशा मेमोराइज रखना है। जहाँ भी आपको मीन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी ये फॉर्मूला आपके काम आएगा। कंसिडर दिस एग्जांपल्स। एग्जाम्पल देख लीजिए, आशीष स्टडीज़ फॉर 4 hours, 5 hours एंड 3 hours रेस्पेक्टिवली और 3 consecutive days. हाउ मेनी hours डज ही स्टडी डेली ऑन एन एवरेज। एवरेज निकालना है, कितने कितने आवर, 3 days हैं तो क्या लिखेंगे, टोटल ऑफ आवर्स एंड नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज। तो 4 + 5 + 3 डिवाइड बाय 3। नंबर ऑफ डेज कितना है आपके पास, 3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और 3 12 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज हो जाएगा आपके पास 4 आवर। ठीक है, ये देख लीजिए, द एवरेज स्टडी टाइम ऑफ आशीष वुड बी टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज फॉर विच ही स्टडीज। 4 + 5 + 3 डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 आवर्स पर डे। दस वी कैन से दैट आशीष स्टडी फॉर 4 आवर्स डेली ऑन एन एवरेज। ठीक है, ऐसे ही आपको और एग्जांपल दिया हुआ है एक और, ये आपको ट्राई करने हैं। सारी एक्टिविटी दी हुई है। अब आता है आपके पास रेंज या परिसर। अब रेंज कैसे निकालते हैं, देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द स्प्रेड ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। दिस कैन बी फाउंड बाय सब्सट्रैक्टिंग द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। रेंज आप कैसे निकालेंगे, हमेशा हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोएस्ट ऑब्जर्वेशन को माइनस करके। वी कॉल द रिजल्ट द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल हम इसके लिए देख लेते हैं। द एजेस इन ईयर्स ऑफ 10 टीचर्स ऑफ अ स्कूल्स आर। एक स्कूल में 10 टीचर्स हैं, उनकी एज क्या है, 32, 41, 28, 54, 35, 26, 23, 33, 38 और 40। वॉट इज़ द एज ऑफ ओल्डेस्ट टीचर। सबसे ज़्यादा उम्र के टीचर की एज क्या है, 54 है, एंड दैट ऑफ द यंगेस्ट टीचर की क्या है, 23 है। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ द एजेस ऑफ टीचर्स। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 54 में से 23 को माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा आपके पास 31 ईयर। व्हाट इज़ द मीन एज ऑफ दिस टीचर। मीन निकालेंगे इसका, तो ये क्या करेंगे, इन सबका प्लस, और कितने टीचर हैं, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स कितनी है, 10, तो 350 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 35 ईयर्स। इसके बाद आपके पास एक एक्सरसाइज है, इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है मोड। मोड क्या होता है, एज वी हैव सेड, मीन इज़ नॉट द ओनली मेजर्स of central tendency or the only form of representative value for different requirements from a data. Other measurement of central tendency are used. Look at the following example. एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, इसके जरिए हम मोड को समझेंगे। मोड को क्या कहते हैं, बहुलक। To find out the weekly demand of different size of shirt. डिफरेंट साइज़ की शर्ट की वीकली डिमांड, साप्ताहिक डिमांड को फाइंड करने के लिए अ शॉपकीपर, एक दुकानदार, कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ सेल्स ऑफ साइज़, अपने जो साइज़ उसने सेल किए कौन कौन सी, 90, 95, 100, 105, 110 सेंटीमीटर। फॉलोइंग इज़ द रिकॉर्ड फॉर अ वीक। एक वीक के लिए उसने इतनी शर्ट सेल की हैं।
टोटल भी लिख रखा है उसने लास्ट में, नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड। If he found the mean number of shirts sold, do you think that he would be able to decide which shirt size to keep in stock? Mean of total shirts sold, total number of shirts sold divided by number of different size of shirt. So 105 divided by 5 is equals to 21. Should be obtained 21 shirts of each size. If he does so, will he be able to cater to the needs of the customers? The shopkeeper, on looking at the record, decided the procured shirts of sizes 95, 100, 105. He decided to postpone the procurement of the shirts of other sizes because of their small number of buyers. Look at another example. एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे आपको मोड निकालना है। एक मोड निकालने का तरीका क्या है, देखिए एग्जाम्पल में, फाइंड द मोड ऑफ द गिवन सेट ऑफ नंबर्स 1 1 2 4 3 2 1 2 2 4. Arranging the numbers with the same values together, we get 1 1 1 2 2 2 2 3 4 4. Mode of this data is 2 because इट ऑकर्स मोर फ्रिक्वेंसी देन अदर ऑब्जर्वेशन। सबसे ज़्यादा बार क्या आया, 2 आया, तो इसका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। मोड ऑफ लार्ज डाटा का मोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं। क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द मार्जिन्स ऑफ विक्ट्री इन द फुटबॉल मैचेस ऑफ अ लीग। लेट अस पुट द डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म। ठीक है, टेबुलर फॉर्म में इसको कैसे लिखते हैं, देखिए एक जो है आपका 9 टाइम्स आया है, लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, 4 तो सीधी लाइन, और जब 5 आएगा तो एक क्रॉस वाली लाइन बना देंगे, फिर अगेन 4 लाइन, तो इसका क्या गिनेंगे टोटल 1 2 3 4, और एक क्रॉस की लाइन है तो इसको 5, फिर 6 7 8 9। ठीक है, 2 आपके 14 टाइम्स आया है, 3 7 टाइम्स आया है, 4 5 टाइम्स आया है, 5 3 टाइम्स आया है, और 6 2 टाइम्स आया है। इनका टोटल हो गया आपके पास 40। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल आपको समझना है, सब मोड के एग्जाम्पल हैं ये। अब मीडियन कैसे निकालेंगे, फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा 24 36 46 17 18 25 35. वी अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर, वी गेट 17 18 24 25 35 36 46. मीडियन इज़ द मिडल ऑब्जर्वेशन, जो आपके सबसे मध्य में आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। तो यहाँ पे क्या है, आपका 25 मीडियन है, 25 के आगे भी 3 डिजिट हैं और 25 के बाद भी 3 डिजिट्स हैं। इसके बाद आपके पास आ रही है एक्सरसाइज 3.2, ये 3.2 आपको करनी है। अब क्या आ रहा है, यूज़ ऑफ बार ग्राफ्स विद अ डिफरेंट पर्पस। अब आपको ग्राफ बनाना है, ग्राफ कैसे बनाएंगे, चूजिंग अ स्केल, एक स्केल को चूज़ करना पड़ता है जब भी आप ग्राफ को बनाते हो। एक आपकी एक्स एक्सेस होती है और एक वाई एक्सेस होती है। अब जो आप ग्राफ बनाते हो उसमें जो स्केल लेते हो वो या तो 10 के रेशो में लेना पड़ेगा या 100 के रेशो में, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। देखिए एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। 200 students of 6th and 7th classes were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building. The results are shown in the following table, represent the given data on bar graph. 200 स्टूडेंट हैं क्लास 6 और 7 के, उनसे क्या कहा गया है कि आपके फेवरेट कलर को बताइए ताकि ये डिसाइड किया जाए कि स्कूल की बिल्डिंग का कलर कैसा रखा जाएगा। और उन्होंने अपने कलर बताया, देखिए 43 स्टूडेंट्स ने रेड कलर चूज़ किया, 19 ने ग्रीन, 55 ने ब्लू, 49 ने येलो और 34 ने ऑरेंज। ठीक है, आंसर वर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ द बार ग्राफ। Which is the most preferred color and which is the least preferred? How many colors are there in all? What are they? ठीक है, सबसे पहले क्या करा, चूज अ सूटेबल स्केल एज फॉलो। सबसे पहले हमने स्केल को फॉलो किया, क्या स्केल लिया हमने, यहाँ 0 से शुरू होती है हमारी एक्सेस। एक तरफ हमने एक्स एक्सेस पे कलर्स को डिफाइन किया है और वाई एक्सेस पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स किस रेशो में दिए गए हैं, आपको 10 का डिवाइडेशन ले सकते हैं क्योंकि आपका ये 19 से शुरू होकर कहाँ तक जा रहा है, 55 तक। तो ये 10 का रेशो अगर हम लेंगे तो इसे आसानी से हम बार में
डिनोट कर पाएंगे, तो हमने यहाँ पे 10 का रेशो लेके करा है, ठीक है। वी देन ड्रॉ एंड लेबल द ग्राफ एज शो फ्रॉम द बार ग्राफ वी कंक्लूड दैट फर्स्ट का आंसर है ब्लू इज़ द मोस्ट प्रीफर्ड कलर। सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्या किया कि ब्लू कलर को पसंद किया, बिकॉज द बार रिप्रेजेंटिंग ब्लू इज़ टॉलेस्ट। ग्रीन इज़ द लीस्ट प्रीफर्ड कलर, ग्रीन कलर को सबसे ज़्यादा कम बच्चों ने पसंद किया, बिकॉज द बार रिप्रेजेंटिंग ग्रीन इज़ शॉर्टेस्ट, क्योंकि ग्रीन कलर की बार क्या है, सबसे छोटी है। देयर आर 5 कलर्स, कौन कौन से कलर बच्चों ने चूज़ किए, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो और ऑरेंज। एक और एग्जांपल सेम एज इट इज़। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्या है 450, 500, 300 ऐसा रेशो दिया गया है, तो यहाँ हम 100 का स्केल चूज़ करेंगे और बार ग्राफ बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बार ग्राफ आप देख रहे हैं, एक तरफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स और एक तरफ मार्क्स आउट ऑफ 600 बाय स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसमें इसने 100 का स्केल लेके बनाया है। ड्राइंग डबल बार ग्राफ, अब आता है आपके पास डबल बार ग्राफ कैसे बनाएंगे। जब आपको 2 सिचुएशंस दी जाएंगी तब आप उसके लिए डबल बार ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, अ मैथमेटिक्स टीचर वांट टू सी वेदर द न्यू टेक्निक्स ऑफ टीचिंग शी अप्लाइड आफ्टर क्वार्टरली टेस्ट वाज इफेक्टिव और नॉट। शी टेस्ट the score of 5 weakest children in the quarterly test out of 25 and the half yearly test out of 25। दोनों मार्क्स आपके क्वार्टरली और हाफ ईयरली के 25 में से हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसने 5 का स्केल लिया है, जैसा कि आप ग्राफ देख पा रहे हैं, बार ग्राफ आप देख पा रहे हैं। एक तरफ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है और एक तरफ क्या है कि जो मार्क्स उन्होंने गेट किए हैं, एक बार क्वार्टरली में और एक बार हाफ ईयरली में। जो आपका वाइट वाला है वो क्वार्टरली और ब्लैक वाला है वो हाफ ईयरली के मार्क्स हैं, ठीक है। उसमें ग्राफ ऐसे डबल ग्राफ बनेगा आपके पास। इसके बाद आपके पास एक एक्सरसाइज है 3.3, इसको आपको सेम एज इट इज़ करना है। चांस एंड प्रोबेबिलिटी, अब चांस और प्रोबेबिलिटी क्या है। These words often come up in our daily life. We often say there is no chance of it raining today, and also say things like it is quite probable that India will win the World Cup. Let us try and understand these terms a bit more. Consider this statement. The sun coming up from the west, सूरज आपका पश्चिम से उगता है। एन आर्ट ग्रोइंग टू 3 मीटर्स हाइट, एक चींटी 3 मीटर की हाइट को प्राप्त करेगी। इफ़ यू टेक अ क्यूब ऑफ लार्जर वॉल्यूम इट्स सेट्स विल आल्सो बी लॉन्गर। इफ़ यू टेक अ सर्कल विद लार्जर एरिया देन इट्स रेडियस विल आल्सो बी लार्जर। इंडिया विनिंग द नेक्स्ट टेस्ट सीरीज। इफ़ वी लुक एट द स्टेटमेंट गिवन अबव यू वुड say that the sun coming up from the west is impossible and ant growing to 3 meters is also not possible. On the other hand, if the circle of a longer area, it is the certain that it will have a longer radius. You can say the same about the larger volume of the cube and the larger side. On the other hand, India can win the next test series or lose it. Both are possible. चांस, ठीक है। चांस क्या है, इफ़ यू टॉस अ कॉइन कैन यू ऑलवेज करेक्टली प्रेडिक्ट व्हाट यू विल गेट। ट्राई टॉस्टिंग अ कॉइन एंड, देखिए जब आप कॉइन को उछालेंगे तो आपको ये हमेशा पता नहीं होगा कि आपके पास हेड आएगा या टेल आएगा। इसको आप 10 टाइम्स उछाल रहे हैं, 25 टाइम्स इसने बताया है, तो हेड और टेल आने की प्रेरिकता ये होगी आपके पास, ठीक है। इसके बाद आ रही है आपके पास प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। वी नो दैट व्हेन अ कॉइन थ्रो इट हैज़ 2 पॉसिबल आउटकम्स, 2 उसके पॉसिबल आउटकम्स होंगे, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एंड फॉर अ डाई वी हैव 6 पॉसिबल आउटकम्स। जब हम किसी पासे को फेंकते हैं तो उसके 6 आउटकम्स आने की संभावनाएं होती हैं। We also know from experiences that for a coin, head or tail is equally likely to be obtained. We say that the probability of getting head or tail is equal and each half of for each. For a die, possibility of getting either 1, 2, 3, 4, 5 or 6 is equal. There is for a die there are 6 equally likely possible outcomes. We
से ईच ऑफ 1 2 3 4 5 6 हैज़ 1/6 प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपके, जो आउटकम्स आ रहे हैं जैसे 1 का आउटकम्स 1 एक ही बार आ सकता है जब आप किसी डाई को उछालेंगे, और लेकिन इसकी टोटल क्या है प्रोबेबिलिटी 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास कि आउटकम्स की जो संभावना है वो डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स कितने आ रहे हैं आपके पास 6। ठीक है, ये आपका था चैप्टर 3 क्लास 7 का NCERT का। अगर आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोग चाहते हैं कि आगे मैं और वीडियो बनाऊं, आप लोगों को और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।